So you see, again today I'm as we discuss about it. Yesterday only I discussed, and today again I'm doing the same things. So before starting my lectures, I welcome you all in An Academy. And you see, let us talk something about An Academy, something good thing about An Academy. Crack UPSC Civil Service optionals with us. That is, it's India's largest learning platforms. And you see, once you crack, you get the once you subscribe, it's the benefit which you will be getting it is this, that you will be getting daily live classes. And in this daily live classes, you see, in this daily live classes you see in this daily live classes, you are there to chat with the educators. Okay, you are there to chat with the educators, and you will be chatting with the educators, you'll be engaged with discussion, asking doubts, and many more things. Again, you see, there are structural courses. As you know that it provides more than 15,000 plus structural courses, and all the structural courses are well arranged. Live test and quiz is also organized here, and live test and quiz are only and only there to improve the performance of the learner. Unlimited accessibility literally means that if you fail to get daily live classes, so you'll be getting recorded class, जैसे अभी हम आपको recorded class दे रहे हैं. Okay, now you see, you can download this app through Google Play or App Stores from anywhere. About me, I have completed graduations from Calcutta University in science subject and has done public administrations in I have done MA in public administration from IGNOU University. As I am acting as a mentor for last 11 years and so in public administration, polity and governance. I have appeared for UPSC Civil Service interview twice and have served many reputed IAS coaching institution in Delhi and many more states. Under my guidance, you see, many aspirants have cracked UPSC Civil Service as well as many state level too. Even my younger brother has also IRS. He's also IRS under my guidance. So you see, you can see that here along with me, you will be seeing that there are top 100 educators who will be nurturing you. They will be guiding you. Like in this slide, you can see there are name of few top educators. You see, as I said, it provides more than 15,000 courses. So polity, governance, geography, science and tech, history, and here we'll be very much focusing with the optional subjects. So environment, current affairs, many more things. So as you know that these courses cannot be completed in 1 month, 3 months, or 6 months. So it's better that you get the subscription for 12 months. And you see, there are altogether two types of courses An Academy is providing. One is of plus course, and the second one is of iconic courses. One is of plus course, and the second one is iconic courses. When we say about the plus courses, you see, when we say about the plus courses, तो प्लस कोर्सेज में आप देखिए 1 महीने के लिए भी अगर आप एडमिशन लेंगे, 3 मंथ्स के लिए भी लेंगे, 6 मंथ्स के लिए भी लेंगे, तो यू हैव टू पे दिस अमाउंट. दिस ऑल आर बेस फेयर. ये बेस फेयर है, इतने अमाउंट आपको देने पड़ेंगे. ओके, दिस अमाउंट यू बट इफ यू अप्लाई माई प्रोमो कोड MDYT यू विल गेट 10% डिस्काउंट, और इनमें आपको 10% डिस्काउंट करने के बाद यू सी दिस अमाउंट यू आर गोइंग टू पे. But if you take again 12 months, fees is 49,500. But if you apply my promo code MDYT, you will get 10% discount. You will get 10% discount, and that is 44,500. For 24 months, you see, you will get 72,000 fees. You have to pay 72,000. But if you apply my promo code again MDYT, you will get 10% discount, and that is 64,800. Similarly, 36 month, 90,000 fees is this. But if you apply my promo code MDYT, you will get 10% discount, and that is of great use. Again, you see, we are talking about iconic courses, and when we talk about iconic courses, this iconic courses is being provided to everyone, those who subscribe it. And iconic courses, these are the benefit: personal coaching, daily questions answer writing practice, study planner, and personal feedback. You see, for 12 months, if you apply it, you'll be getting 69,500 for. But if you apply my promo code MDYT, अगर आप मेरा promo code apply करते हैं तो आपको 10% discount मिलेगा, and you have to pay 62,550. Similarly, for 24 months, 1,07,000 is the fees, and if you apply my promo code, that is MDYT, you see 96,300 will be the fees. 96,300. 36 month, 1,41,000, and for 36 month, you see 1,26,900 you have to pay once you apply my promo code MDY2. So these are the structures, fee structures, which you have to pay once you subscribe the An Academy. Okay, so now it is clear. Now you see, as you all know that we people were discussing
Last class I discussed about Mary Parker Follett's its coordination theory. Okay, Mary Parker Follett's its coordination theory, and today we'll be continuing from there. Okay, today I'll be continuing from there. So it's in slide, it's a big slide, so we have to think about that. Now, yes, so we have done all this, we have done all this, we have done depersonalizations, we also have done control. We were going with coordination, and I have explained the two principle of coordination. That is, coordination should be reciprocal. That is, coordination should be reciprocal, and you see, coordination should be reciprocal to all factors in situation. Okay, that I have discussed in the last class, and this also I have discussed that coordination should be direct for both horizontal and vertical communication, the vertical terms. That means these two also I have explained, and I have given the example according to Indian administration. इन दोनों के लिए हमने आपको एग्जाम्पल दे चुके हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. According to Indian administration. So now the third principle she talks about, when we say about this, the third principle talks about coordination should be planned in early stage. So it should be incorporated in the stage of policy formulations. अब देखिए, अब हम आपसे, if you watch Mary Parker Follett theory from D.D. Basu's, as not D.D. Basu, from Prasad and Prasad, that is administrative thinkers, आप खुद देखिए कि मेरी पार्कर फॉलेट ने मेरी पार्कर फॉलेट ने यू जस्ट सी मेरी पार्कर फॉलेट उस दौर के टाइम में कितने एडवांस के बारे में सोच रखी हैं कि कोऑर्डिनेशन शुड बी प्लान्ड. यू सी, कोऑर्डिनेशन शुड बी प्लान्ड, यानी आप किसी को जानते नहीं हैं और आप जाके कोऑर्डिनेशन करेंगे और उससे कहेंगे कि आप ये काम करो, बिल्कुल नहीं. एंड यू सी, दिस प्लानिंग इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. यू जस्ट टेक एग्जाम्पल ऑफ दोज हु आर वॉचिंग. आप लोग एग्जाम्पल अपने ऊपर ले लो कि हाउ द कोऑर्डिनेशन इज बीइंग प्लान. कोऑर्डिनेशन प्लान कैसे है, क्यों? इफ यू सी दैट, आई एम टेलिंग यू हाउ द कोऑर्डिनेशन इज प्लान्ड. क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन में आप खुद अपने आप को एग्जाम्पल्स लो माय डियर, कि यू पीपल आर प्लान टू बी अ पार्ट ऑफ civil service. That is why you search that which exam will be best, and you search for UPSC civil service exam. आपने प्लानिंग किया कि हमको आईएएस बनना है, हमको सिविल सर्वेंट बनना है, तो आपने सर्च किया कि अब हमको कौन सा एग्जाम दे तो हम बनेंगे. हालांकि सब में आप सिविल सर्वेंट बनेंगे, बट आप देखिए, जब आप इसमें बनते हैं, जब आप इसमें प्लान तरीके से बनते हैं, तो इस प्लान तरीके से आपने डिसाइड किया कि हमको आईएएस बनना है. अब फिर डिसाइड करने के बाद आपने क्या प्लान किया? आप उसके सिलेबस को देखना चालू किए. ये दीज ऑल आई एम सेइंग इन अर्ली स्टेज, यानी आप अभी कोचिंग में नहीं गए हो और आप अभी अपनी पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं की हो, यानी कि आप अभी उसकी तैयारी नहीं चालू की हो. आप अर्ली स्टेज में आप ये प्लानिंग कर रहे हो कि हमको आईएएस बनना है, तो अब आप कोचिंग सर्च करोगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सर्च करोगे, कहां पे टीचिंग अच्छी कराई जाती है, और उसके बाद वहां पे 2-4 डेमो लेक्चर देखोगे, वीडियोस देखोगे, और देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ, ये मेरे पर्पस को फुलफिल करेगा, तो आप क्या करोगे कि आपने जो भी प्लानिंग किया है उसको अपने पॉलिसी में इंक्लूड कर लोगे और कहोगे कि यही हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म हो, हम इसी में इनरोल कराएंगे, यही हमारा पर्पस फुल कर सकता है. ओके, गॉट इट? तो ये जस्ट मैंने आपके ऊपर एग्जांपल लेके दिया है, बट मेरी पार्कर फॉलेट तो
शी इज टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस। तो घर का मैटर और ऑर्गेनाइजेशंस का मैटर में बहुत का डिफरेंस आ जाता है, देयर इज टू मच डिफरेंस इन इट, बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं, isn't? तो उस डिफरेंस को, दैट डिफरेंसेस वी नीड टू टेक अबाउट इट, हमने वी नीड टू सी अबाउट दैट डिफरेंसेस, ओके। और उस डिफरेंसेस को देखने के लिए हमें मेरी पार्कर फॉलेट के व्यूज को समझना होगा, मेरी पार्कर फॉलेट के व्यूज को समझना होगा। yes you need to think the view of मेरी पार्कर फॉलेट फर्स्ट। अगर आप मेरी पार्कर फॉलेट के व्यूज को समझ गए, आइडियोलॉजिकली अगर आप मेरी पार्कर फॉलेट के व्यू को समझ गए, तो आई एम ऑनेस्टली सेइंग कि आपकी लाइफ में एवरीथिंग विल बी इन प्लान मैनर। आप देखिए ना, आपके पेरेंट्स मंथली लाते हैं घर में, मंथली डिसाइडेड, वो प्लान से चलते हैं। अब आते हैं मेरी पार्कर फॉलेट के ये कोऑर्डिनेशंस को, हाउ इट इज इंपॉर्टेंट इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। हम हमेशा आंसर जब भी लिखेंगे व्यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, व्यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, व्यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जब हम बात करते हैं, तो जितने भी थिंकर्स हैं, मैं केवल मेरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेरी पार्कर फॉलेट, अगर आप मेरे लास्ट के भी वीडियोस या पास जो भी लेक्चर्स आप देखेंगे, उसमें everywhere I try to compare with Indian administration. क्यों? Because you are going to become the part of Indian administration, and since you are going to become the part of Indian administration, how better, how good, how better, how best you interpret the thinkings of this thinker. That is very important. ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, इसीलिए हम आपको केवल और केवल इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव से समझा रहे हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव से समझा रहे हैं। और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको उस एंगल से देखिए। अभी जो हम आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, ये एग्जाम्पल सभी लोग देंगे, आप नया स्पेशल क्या करेंगे, तो आप यू ट्राई टू मेक योर ओन एग्जाम्पल्स। अब देखिए प्लान्ड अर्ली स्टेज, लाइक यू सी अर्लियर बिफोर 2015, 2015 से पहले वी वर हैविंग प्लानिंग कमीशन। Isn't? अभी प्लानिंग कमीशन को बंद कर दिया गया या हटा दिया गया। आप देखिए, जब हम प्लानिंग कमीशन की, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन वाज प्योरली सेंट्रलाइज्ड बॉडी। और इस प्लानिंग कमीशन में क्या होता था, भारत का पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान वाज इवैल्यूएटेड। ये अर्ली स्टेज है, 5 साल के। बट इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि व्हेन दिस प्लान वाज मेड फॉर द नेशन, जब ये प्लान बनाया जा रहा था फॉर द नेशन, तो इसमें स्टेट वाज नॉट द पार्टी ऑफ दैट। यहां ये ड्रॉबैक है, स्टेट वाज नॉट द मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन। हाँ, इसको बाद में एनडीसी में दिया जाता था, तो एनडीसी में देवर, बट प्लान तो ऑलरेडी बन चुका है, अर्ली स्टेज में 5 साल का प्लानिंग बन चुका है, और उसको आपको इंप्लीमेंट करना है कैसे, 1 ईयर्स के थ्रू। सो यू सी इन दिस रिगार्ड व्हेन वी से अबाउट दिस, तो 2015 से पहले इट वाज प्लानिंग कमीशन। अब आप देखिए ट्रेजेडी, नाउ यू सी, जब 2015 से पहले ये प्लानिंग कमीशन बन गया था, तो 2000, you see in 2015 onwards, the government has initiated Niti Aayog. Government Niti Aayog lekar आई, and you see when government has brought this Niti Aayog na,
This Niti Aayog formulates 15 years, very long term plan, 15 years plan, and that is to be disintegrated in part wise. क्योंकि कोई भी प्लान को लाने के लिए हमें लॉन्ग टर्म के लिए सोचना पड़ेगा. तो ये 15 years प्लान के लिए यू सी हियर सेंट्रल यूनियन एंड स्टेट एंड अदर मेंबर्स आर ऑल्सो दी पार्टी. इसीलिए नीति आयोग की जब मीटिंग होती है तो स्टेट्स को कहा जाता है कि आप आओ, मीटिंग में पार्टिसिपेट करो एंड यू गिव योर ओन व्यू बिकॉज आई एम गोइंग टू प्लान फॉर द नेशंस एंड स्टेट इंक्लूड्स नेशन ऑल्सो. And this, your view, if the view is good enough, then we'll try to include it into the policy formulations of the nation. पॉलिसी फॉर्मुलेशन ऑफ द नेशन. यानी आप खुद देख लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब ये प्लानिंग करने लगती है तो ये सारे डायमेंशंस को देखती है और सारे डायमेंशंस को देखते हुए गवर्नमेंट यूज्ड टू प्लान. और ये अर्ली स्टेज में होता है. यानी देखिए, प्लानिंग ऐसा नहीं है ना कि आप रात को सोए, सुबह सपना देखें और आके प्लानिंग करने लग गए. इट्स नॉट लाइक दैट. प्लानिंग बहुत सोच समझ के किया जाता है. क्यों? क्योंकि प्लानिंग हैज मेनी डायमेंशंस. अगर आपका प्लान गलत हुआ तो यू सी होल डायनेस्टी विल एंड, सिविलाइजेशन विल फेल. और अगर आपका प्लानिंग अच्छा हुआ तो यू सी द कंट्री विल प्रॉस्परस. तो यानी प्रोज एंड कॉन्स आपको देख के चलने पड़ेंगे. रिमेंबर दिस, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द प्लानिंग यू मस्ट हैव टू वॉच. अगर आप प्रोज एंड कॉन्स उस प्लानिंग का वॉच नहीं किए, यू विल सफर, यू विल सफर. और यही वजह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये नीति आयोग लाने का, नीति आयोग फुल फॉर्म इज नेशनल इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. यानी ये नेशनल इंफॉर्मेशन इज दैट विल ट्रांसफॉर्म द इंडिया. और जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो देयर शुड बी प्लानिंग शुड बी एट फ्रॉम द अर्ली स्टेज एंड स्टेट एंड यूनियन बोथ शुड प्लान. दोनों मिलके प्लान करना चाहिए. बोथ शुड प्लान. दैट इज व्हाई यू सी उस दौर के टाइम में मेरी पार्कर फॉलेट ने दिया, आज ये कितना एप्लीकेबल है. यू जस्ट रियलाइज बाय योरसेल्फ. ये आपको रियलाइज करने की जरूरत है, नॉट मी. ओके, नॉट मी. ये आपको रियलाइज करने की जरूरत है. Okay, so this is to be realized by you. Got it? Wait a minute. Now see, the fourth principle of coordination is it is continuous process. So there should be permanent machineries to achieve coordinations in regular basis. ये एक बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है. This is really one of the best and good thing that the planning should be continuous process. यानी अगर आपका कम्युनिकेशन बीच में टूट गया, अगर कम्युनिकेशन आपका बीच में टूट गया तो आप देखिए कंटिन्यूअस प्रोसेस विल आल्सो गेट डिसइंटीग्रेटेड. इसीलिए आप देखिए गवर्नमेंट की सबसे बड़ी लैकुना क्या होती है. व्हाट डज द गवर्नमेंट लैक, वेयर डज गवर्नमेंट लैक. यू सी व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, so in this regard you see, suppose a government has planned to build a flyover, isn't? गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग किया कि हमें से फ्लाईओवर बनाना है. ओके, अब जब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया कि हमें यहाँ फ्लाईओवर बनाना है, isn't? तो आप खुद रियलाइज कीजिए, नाउ यू जस्ट रियलाइज कि क्या गवर्नमेंट का ये प्लान सक्सेस हो पाता है.
अगर वो 2 साल में उसे कह रहे कंप्लीट करने के लिए, नाउ इट इज गोइंग टू कंप्लीट फॉर 5 आफ्टर 5 years. क्यों? बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन गैप, बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन गैप. बहुत सारी फैक्टर्स आके वहां रोल प्ले करती हैं. और यही अगर पीपीपी मॉडल पे बना तो दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर 2 years. मतलब समय से पहले वो कंप्लीट हो जाएगा. It will be completed time before time. So you see, that is why when we talk about public private partnerships, that is good. But in terms of, that is why she said that the planning, the coordination should be continuous, and it is a permanent machineries. ये परमानेंटली चलनी चाहिए, तभी जाके ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्परस करेगा. और अगर कोई भी चीज परमानेंटली चल रही है तो डेफिनेटली दैट ऑर्गेनाइजेशन विल ग्रो. Okay, and this is only the reason that when we say about मेरी पार्कर फॉलेट, तो देखिए उनके कोऑर्डिनेशंस के जो व्यूज हैं, हाउ बेटर इट इज. उनके कोऑर्डिनेशंस के जो ये व्यूज है, इट इज सो बेटर, सो गुड दैट इट इज एप्लीकेबल इन टुडेज एरा. दैट इज व्हाई शी इज कॉल्ड दैट हर थिंकिंग इज एडवांस ऑफ हर एरर. यानी जब उसने ये थॉट दिए थे मेरी पार्कर फॉलेट ने, ये थॉट आने वाले समय के लिए था और उन्होंने बहुत पहले दे दिया था. So that is why we talk about, this is what she talks about coordination. So when we talk about coordination, she gave this first principle, that is coordination should be reciprocal, it should be direct, that is horizontal and vertical, it should be at early stage, plan should be at early stage, and coordination should be achieved, that is a continuous process. These 2-3 things you have to listen एंड केयरफुली. देखिए यूएन, अगर वर्ल्ड की भी बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस का एनुअली 2 बार 3 बार मीटिंग होता है. दैट इज कंटिन्यूअस, दैट इज कंटिन्यूअस. ओके, सो नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मेरी पार्कर फॉलेट इज इशूइंग ऑफ ऑर्डर. ये भी एक बहुत अच्छा चीज है कि ऑर्डर इशू कैसे किया जाए. अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मेरी पार्कर फॉलेट के जो व्यूज हैं कि अथॉरिटी ऑर्डर कैसे इशू करता है. तो मेरी पार्कर फॉलेट ने कहा है कि देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ इशूइंग ऑर्डर. 4 ऐसे स्टेज है ऑर्गेनाइजेशन में जिसको ध्यान में रखे ऑर्डर को इशू किया जाता है. यू सी, इशूइंग ऑफ ऑर्डर, फॉलेट एक्सप्लेन द 4 स्टेजेस इन इशूइंग ऑर्डर. ऑर्डर का मतलब आप समझ रहे हैं? दैट इज इन क्लासिकल थिंकर्स टर्म्स इट्स बेटर टू से यूनिटी ऑफ कमांड. In classical thinkers view, it is better to say unity of command. ओके, और जब हम यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में बात करते हैं, जब हम यूनिटी ऑफ कमांड की बात करते हैं तो क्लासिकल थिंकर्स का जो ऑर्डर था, ऑलरेडी आई हैव सेड, इट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. इट वाज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. बट मेरी पार्कर फॉलेट ने कहा है कि अगेन ऑर्डर सिचुएशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए. Again, Mary Parker Follett has said that order, it should be according to the situation. And you see, when she said according to the situation, so you see, Follett explained the 4 stages in issuing the order in terms of attitude. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में एटीट्यूड बहुत मैटर करता है, वेरी मच. ऑर्गेनाइजेशंस में एटीट्यूड रियली इट डज मैटर, really it does matter. Number 1, she says conscious order. कॉन्शियस का मतलब कॉन्शियस एटीट्यूड, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो सुपीरियर ऑर्डर देते हैं, दैट इज ऑफ रिलेटेड टू, शी हैज रिलेटेड विद एटीट्यूड. और आपको पता है कि एटीट्यूड सुपीरियर में बहुत ज्यादा होता है.
ऑर्गेनाइजेशन में आज भी बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनका एटीट्यूड बहुत बहुत लो लेवल पे है, बहुत लो लेवल पे है। I remembered when I was preparing, so one of my friend qualified for Indian Engineering Service और उन्हें रेलवे का एक अच्छा पोस्ट मिला। ओके तो उस दौर के टाइम में बट ही वॉज अ वेरी सिंपल पर्सन। अब एक मीटिंग में बुलाया गया था जहां पे पब्लिक भी थी और वो भी थे और सबको पास इशू किया जाता। तो आप देखिए कि ये ऑफिसर थे, इनको क्या था कि इनके लिए अलग वीआईपी क्यों थी और नॉर्मल सिटीजन्स के लिए अलग थी। तो इन्होंने क्या किया, नॉर्मल सिटीजन्स में जाके लाइन लगा ली क्यू में खड़ा होके, और जब वो पास के पास पहुंचे तो उन्होंने उनका नाम पूछा, उन्होंने अपना नाम बताया। तो उसने बोला कि फिर बोला उनका कि आप क्या करते, तो ही सेड दैट कि आई एम दिस। तो उन्होंने कहा कि सर ये नॉर्मल सिटीजन्स का लाइन है सर, आप लोग का लाइन उधर है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जानबूझकर इसके अंदर आया हूं ताकि मैं भी थोड़ा पेन देखूं कि हाँ सिटीजन्स जो हैं वो कितनी देर खड़े रहकर व्हाट दे आर सेइंग टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये देखिए इस तरह के एटीट्यूड बहुत कम सिविल सर्वेंट में मिलेगा। सच टाइप ऑफ एटीट्यूड इफ यू विल सी वेरी लेस सिविल सर्वेंट विल, बहुत कम। आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जांपल ऑफ दैट। यू सी व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग एज यू ऑल आर प्रिपेयरिंग, तो मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड इट। दे ऑर्गेनाइज अ सेमिनार, और उस सेमिनार में मैं भी जाके बैठा। सो द आईएएस ऑफिसर वाज शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस कि देखो मैंने क्या किया मेरे साथ, what that is what they were saying it. So you see when this IAS officer was saying it na, so one of the IAS officers he came and says that कि I was posted to motor vehicle department and there I was a director. और जब मैं वहां डायरेक्टर बना तो मेरे साथ there was many guard, तो मेरा वहां 3 साल का टर्म्स था, मैं वहां 3 साल किया। तो उसी बीच में मेरा जो बहुत करीब वेरी क्लोज गार्ड जो था वो मेरे को वो रिटायर्ड हो रहा था, तो मैंने उसका रिटायरमेंट का फेयरवेल करवाया और उसके बाद मेरा ट्रांसफर हो गया एंड आई ज्वाइंड इट विद जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट इन दी सेक्रेटरी, आई ज्वाइन विद सेक्रेटरीट पोस्ट। तो और वो गार्ड मेरे को उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने डिफॉल्ट थे वो बताता था कि ये क्लर्क ऐसे कर रहे हैं, ये लोग इतना पैसा ले रहे हैं। तो इससे उसने क्या किया कि उसको ऑर्गेनाइज वे में एक बहुत अच्छे से उसको समझा और वहां पे मॉडिफाई किया, रिफॉर्म किया। तो उसका ट्रांसफर हो गया और इसका क्या हुआ कि यू सी व्हेन वी, जब उसने वहां से ट्रांसफर होके चला गया तो 2 साल बाद फिर उसी डिपार्टमेंट में उसको जरूरत पड़ी, और 2 साल बाद जब उसको उस डिपार्टमेंट में जरूरत पड़ी किसी काम के लिए, तो वो गया डायरेक्टली, वो गया तो वो लिफ्ट से ना जाके सीढ़ी से गया, लेडर से गया। फर्स्ट फ्लोर जैसे ही उसने पास किया तो सेकंड फ्लोर में क्या था कि डायरेक्टर का रूम था, ऑफिस था। तो वो वहां जाके देखा तो जो गार्ड जिसको उसने फेयरवेल किया था वो गार्ड वहां पे उसी क्यू में खड़ा था। तो उसने डायरेक्टर को देख लिया, देखकर अपना फेस को इधर घुमा लिया, बोला कि डायरेक्टर चला जाए, मेरे को नहीं देखे। बट यू सी एटीट्यूड ऑफ दैट आईएएस ऑफिसर, उसने क्या किया कि जाके उस पर्सन के सामने खड़ा हो गया और बोला कि हाँ बाबूजी आप यहाँ खड़े हैं, व्हाट इज द इशू। तो उसने बोला कि नहीं बेटा से ऐसा कुछ इशू नहीं है, सोरा डिपार्टमेंटल वर्क है से हमारा काम हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो बोला कि अगर आपको कोई भी इशू होगा आप मेरे पास आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, बोल के चले गए। आफ्टर 6 मंथ जब फिर से दिस इज कोइंसिडेंट कि आफ्टर 6 मंथ फिर से जरूरत पड़ी उसी डिपार्टमेंट में उस आईएएस ऑफिसर को जो पहले डायरेक्टर था। तो वो क्या किया कि लिफ्ट पे गया, और लिफ्ट पे गया तो वो फर्स्ट फ्लोर पे रुक गया और बोला कि लेट्स गो वॉकिंग। जैसे वो लिफ्ट के सामने रुका तो देखा अगेन देयर वाज अ क्यू, और फिर से वो आदमी क्यू में खड़ा है। तो इन्होंने देखा उसको, तो अभी ये अगर कुछ बोलते तब तक वो आदमी जो इनका गार्ड था वो इनके सामने आके रोने लग गया, ही स्टार्टेड क्राइंग। तो बोले अरे अरे आप रो क्यों रहे, आप हमारे पिता समान है, व्हाई यू आर क्राइंग। तो उन्होंने कहा कि क्या करें, आप रिटायरमेंट हो गए, आप यहां से ट्रांसफर हो गए, मेरा रिटायरमेंट हो गया, मेरा भी ग्रेजुटी का
पैसा नहीं मिला है, पीएफ का पैसा नहीं मिला है और मेरा पेंशन अभी तक नहीं हुआ, इसके लिए मुझे आना पड़ रहा है और मैं जो क्लर्क है ना, जो कह रहे हैं कि उसको पास करेंगे तो 10% दे विल टेक कमीशन। अब भाई सेक्रेटरी लेवल के थे वो, सेक्रेटेरिएट में बैठे तो डायरेक्टर से ऊपर, उन्होंने क्या किया, उसको अपने साथ डायरेक्टर के पास ले गए और ले जाकर उन्होंने बताया कि ये क्या हो रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, व्हाट इज हैपनिंग, ये गार्ड है 2 साल से अभी तक इसका पेंशन क्लियर नहीं हुआ, आप यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं। अब वो डायरेक्टर को समझ में नहीं आ रहा, सिंस ही इज आल्सो एन आईएएस ऑफिसर, उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या है। सुपीरियर ऑर्डर दिया तो उसने बोला कि पहले इसका फाइल लेकर आओ। यूसी इसके फाइल लाने के लिए क्लर्क वो सेइंग कि सर इनका मैटर सब क्लियर है, हम आपको भेज देंगे, इनका सब क्लियर हो गया सर। दे वर नाउ दे वर अफ्रेड। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि गए, उन्होंने फाइल मंगवाया और उसमें लिखा हुआ था कि केवल डायरेक्टर के सिग्नेचर से इनका पेंशन वगैरह सब क्लियर हो जाए। तब उन्होंने पूछा कि क्यों ऐसा है, तो सर 10% वगैरह। उन्होंने कहा, क्लर्कों को मीटिंग बुलाई और बुलाकर कहा कि अगर देखो मेरे सिग्नेचर का वैल्यू इतना है कि अगर मैं साइन कर दूं तो आपके प्रमोशंस रुक जाएंगे और आपके प्रोविडेंट फंड में बहुत दिक्कत आ जाएगी, और इनके अगर फाइल पे साइन करूंगा तो इनको सब चीज तुरंत मिल जाएगा, इनका पैसा और 2 साल लग गया इनको देने में आप लोग। तो यू सी दिस इज द एटीट्यूड, ये एटीट्यूड की बात है। तो ऑफिसर्स जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं दे रियली हैव वेरी डिफरेंट एटीट्यूड, तो उस एटीट्यूड को ध्यान में रखना पड़ता है। ओके, सो दिस आई विल बी एक्सप्लेनिंग व्यू लेटर, हम इसे एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में क्योंकि हमारी टाइम खत्म हो गई है। ओके, सो अगेन आई विल बी स्टार्टिंग विद इशूइंग ऑफ ऑर्डर। ओके देन, बाय बाय। If you have any doubt, you can ask.